السلام علیکم جی. آج کی تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم کو حافظ جی معاف کر دو, غلطی مارے سے ہو گئی. بالکل بہت ہی مزیدار قسم کی میمز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ میں سوشل میڈیا پہ ایک جگہ پہ دیکھ رہی تھی, کسی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عمران خان صاحب کی موجودہ صورتحال کو شیئر کیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خوف کے بت توڑ دو, حافظ پلیز مجھے چھوڑ دو. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ حافظ صاحب نے تو آپ کو چھوڑا ہی ہوا ہے. حافظ صاحب جنرل اعظم منیر صاحب کی بات کریں, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, اس سب کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک خوشخبری جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تمام تر سیاسی مسائل کے باوجود جو معیشت سے متعلق اچھی خبریں آ رہی ہیں. شرح سود میں 1% کمی آئی ہے, جس کے بعد جو شرح سود ہے وہ 19.5% پر آ گئی ہے, اور اس 1% کی کمی سے پاکستان کے جو مجموعی قرضے ہیں ان میں 675 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے پوچھا جن کے کیلکولیٹرز بڑے اچھے ہیں, کیونکہ ہمارے تو کیلکولیٹر ہی پھٹ جائیں اس طرح کے نمبر سن کر کے. لیکن خبر بڑی ہے اور خبر اچھی ہے, تو میں نے کہا کہ اس کے آغاز بالکل کرنا چاہیے, اس سے آپ کو شیئر کرنا چاہیے. گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق جو مہنگائی کی شرح ہے 38% سے کم ہو کر کے اب 12% پر آ گئی ہے. پاکستان کو اس وقت بیرونی ادائیگیوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ملک کی معاشی آؤٹ لک بہتر ہو رہی ہے, اور جون 2025 تک جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ $3 ارب سے زیادہ ہو جائیں گے. پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے. اس کی گواہی کریڈٹ ریٹنگ کی جو بین الاقوامی ایجنسی ہے فچ, وہ بھی دے رہی ہے. اس نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے, اور فچ نے پاکستان کی طویل مدت غیر ملکی کرنسی جاری کرنے والی ڈیفالٹ ریٹنگ کو CCC سے CCC پلس یعنی CCC سے CCC پلس کر دیا ہے. اچھا, اب CCC سے CCC پلس کا مطلب ہے کہ فچ کی جانب سے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اس وقت ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے مخالفین کے لیے تو بالکل اچھی خبر نہیں ہے, PTI کے لیے تو بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ PTI نے تو پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. PTI نے تو پوری کوشش کی تھی کہ $1 کو پاکستان جو ہے وہ ترس جائے. PTI نے پوری کوشش کی تھی عمران خان کے احکامات کے اوپر, کہ پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا جا رہے تھے, جاتے جاتے انہوں نے IMF کا معاہدہ سابوٹاج کیا. اس کے بعد انہوں نے خط لکھوائے, اپوزیشن میں بیٹھ کر کے خط لکھوائے IMF کو کہ بس پاکستان کسی طرح $1 کا محتاج ہو جائے, اس کو کوئی پیسے نہ ملے. لیکن جب یہ سب کچھ بے سود ہوا, اور اب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے, چاچو جی نے, شہباز شریف صاحب نے چھکا لگا دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی معیشت کو چلا دیا ہے, اور چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اس کے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی کہ وہ قرض اتارے گا. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ سارا مسئلہ ہے تو بل کی وجہ سے بھائی بھائی کو مار رہا ہے, ایک عورت نے, بزرگ عورت نے خودکشی کر لی. بالکل, یہ بڑے ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں, بہت ہی سٹریسنگ قسم کے واقعات ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بھی جو طوفان ہے وہ ایک دن میں تو آیا بھی نہیں تھا, تو ایک دن میں یہ تھمے گا بھی نہیں, یا ایک سال میں تھمے گا بھی نہیں. عمران خان صاحب نے بڑی محنت سے 4.25 سال کی اپنی حکومت میں پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا. 4.25 سال کی حکومت, اس کے بعد جب 16 مہینے کی حکومت آئی تو 16 مہینے میں سے وہ جو حکومت تھی اتحادیوں کی, اس میں سے تو 3-4 مہینے یہی سوچنے میں گزر گئے کہ الیکشن کرانے ہیں, کہ ایکسٹینڈ کرنا ہے, ٹینیور پورا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو نئے لوگ آئے تھے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے, اور ان کی جو لڑائی ہو رہی تھی وہ بھی لاڈ کی لڑائی ہو رہی تھی. دیکھے باجوہ صاحب نے ایسے کر دیا, دیکھے باجوہ صاحب نے ہماری جو حکومت ہے وہ ٹوٹنے سے ہماری مدد نہیں کی. دیکھیں باجوہ صاحب جو ہیں وہ, خیر صاحب تو میں کہہ رہی ہوں, عمران خان صاحب تو صاحب بھی نہیں کہتے تھے, وہ تو ان کو باجوہ کہتے تھے, ٹو بی ویری ہانسٹ. anyway بھائی, لیکن دیکھیں ہم تو صاحب کہیں گے, ہمارا تو طریقہ یہ ہے. اچھا, تو جی نہیں جو باجوہ ہے وہ تو شہباز شریف کے ساتھ جا کے مل گئے, اس طرح کی باتیں. لاڈ میں ان کی لڑائیاں ہو رہی تھیں, اور پھر لاڈ میں نہیں ہمیں جنرل اعظم منیر نہیں بنانا آرمی چیف, ہم نہیں بنائیں گے ان کو, ہم جنرل فیض کو بنائیں گے, بس ہمیں تو فیض ہی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لاڈ کی لڑائیاں ہو رہی تھیں. اور پھر جو پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو ہر ادارے میں چھوٹے ننھے سے بوٹے لگائے گئے تھے, چھوٹے سے, وہ بوٹے جب بڑے ہو گئے, اب زیادہ بڑے ہو گئے ہیں, تو وہ تناور درخت بن گئے ہیں. اب جو تناور درخت بنے ہیں وہ عمران خان کا فین کلب ہے, وہ کر رہے ہیں فل ٹائم عمران خان کی سہولت کاریاں. اب دیکھیں, یہ سہولت کاری تو ہے, یہ سہولت کاری ہے کہ پاکستانی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ عمران خان آ کر کے یہ بول رہے ہیں کہ ہاں میں نے GHQ کے سامنے احتجاج کا بولا. صرف یہی نہیں, ایک قدم آگے جا کے وہ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ پلس کی نا, CC پلس کر دی. اسی طرح عمران خان نے بھی مزید ایک اور چیز کیا بولا کہ صرف یہی نہیں کہ GHQ کے سامنے احتجاج کا ہاں میں نے بولا, انہوں نے یہ بھی بولا
कि इवन हर कंटोनमेंट में जो एहतजाज, जो लुच्चे फ्राई हुई है ना हर कंटोनमेंट में, वो भी मैंने बोला, उसको उन्होंने इतराफ किया। अगर ये सुनने के बाद भी पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, अगर वो ये सुन करके भी अनसुना कर दें और ये सुन करके भी अगर वो कहें कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि इमरान खान उस दिन लीड नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं होगा। सो आई वुड से मुझे पता है बात तो शायद इनको बुरी लगेगी, मैं तो ये कहूंगी कि दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। एक इंसान जो पूरी प्लानिंग कर रहा है, पूरी प्लानिंग के बाद एक्सेप्ट कर रहा है, फिर एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद गैर आईनी इकदाम बार बार किए चले जा रहा है, मतलब वो नया मार्केट में आया ना कि हमको हाफिज जी माफ कर दो, गलती हमारे से होगी। माफियों पर आ चुके हैं, रोने पर आ चुके हैं, गिट्टे गोडों पर आ चुके हैं, पांव पकड़ लिए हैं, अपना जो सर है वो उन्होंने उन कदमों में रख दिया है कि खुदा का वास्ता हमें माफ कर दो। क्योंकि जी वो कह रहे हैं कि जी फौज अपना एक नुमाइंदा असाइन करे और हम उस नुमाइंदे से मुज़ाकरात करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये एक आईनी चीज है कि फौज अपना नुमाइंदा जो है वो नॉमिनेट करे? अच्छा, अगर फौज अच्छी हो और फौज कह दे कि जी हमारा नुमाइंदा द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है शहबाज शरीफ, तो हून दसो हून आराम जे, फिर आराम आएगा जी तानू। आप एक गैर आईनी चीज करके जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं। वैसे इनसे बातें करवा लें। बातें क्या हो रही हैं कि भाई मैंने तो आज तक फौज पे कभी इल्जाम ही नहीं लगाया। तौबा अस्तगफार, तौबा 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 तौबा, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। मैं सिर्फ ये कहूंगी झूठे पर खुदा की लानत। मैं सिर्फ ये कहूंगी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती। जो झूठ बोलता है ना, बचपन में हमें बताया करते थे, पिनोकियो की कहानी हमें मेरी मम्मी सुनाती थी कि जो झूठ बोलता है ना, वो पिनोकियो के अंदर ना, पिनोकियो की जो नाक है ना वो लंबी होती जाती थी एवरी टाइम यूज्ड टू लाई। सो जो झूठ बोलता है ना, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब किस्म की फिटकार होती है। जो झूठा होता है ना, वो उसके चेहरे के ऊपर नजर आता है कि ही इज अ लायर, और वो उसकी शक्ल पे दिख जाता है। करम करतूते तो नहीं छुपते ना, जो आप अंदर से होते हैं ना वो बाहर आपके चेहरे पर आ जाता है। फिर आप जितने चाहे मर्जी फेशियल्स करा लें या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करा लें, कुछ भी करा लें, वो आपके चेहरे के ऊपर वो चीजें नजर आती हैं। आपका जो अंदर होता है ना वो बाहर नजर आता है। तो इमरान खान साहब का आलम यह है कि जमहूरियत के इतने बड़े चैंपियन बनते हैं कि मैंने तो फौज के ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगाया। ओए मौसद के जाए, तौबा अस्तगफार। भाई ये मैं सारी बात अपने कानों को हाथ लगा के तौबा 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 करके कहूंगे, मैंने तो कभी फौज पर इल्जाम नहीं लगाए, मैंने फौज पर तनकीद की है। और जमहूरी माशरों में जो तनकीद होती है वो तो जमहूरियत की निशानी होती है, वो तो अच्छी चीज होती है। अरे भाई, अब इसमें दो चीजें हैं, बहुत आराम से सुकून से आपने सुनना। और अगर आप यूथियां हैं तो आप और आगे आके सुने, क्योंकि इमरान खान आपको गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं। ये यूथियास को उन्होंने एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है। मैं आपको बताऊं, मैं ना आज से पहले हमेशा ये कहती थी कि ये मेरी वीडियोस यूथियास ना सुने, वो चले जाए यहाँ से, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन मैं आज से ये कहना शुरू करूंगी कि मेरी सारी वीडियोस, आप लोग तो जो देखते ही सोच देखते हैं, जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है ना वो भी मेरी सारी वीडियोस देखे, और इसलिए देखे क्योंकि मैं उन बेचारों को भी राह रास्त पर लाना चाहती हूँ। अब ये इमरान खान जो कह रहे हैं, बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने हमेशा तनकीद की है। मुझे मारना कौन चाहता है? जनरल आसिम मुनीर। बुशरा बीबी को कौन मारना चाहता है? बकौल इमरान खान के जनरल आसिम मुनीर। ये इल्जाम नहीं है तो क्या है? SIFC को लेकर के जो इल्जामात लगाए गए वो इल्जाम नहीं है, वो क्या है? क्या तनकीद और इल्जाम में फर्क नहीं होता? अब आ जाए। और ऐसी बहुत सी चीजें जो उन्होंने खुद आर्टिकल्स में लिखी हैं, खुद उन्होंने मीडिया को बोली हैं, बल्कि इस हद तक उन्होंने इतने इल्जाम लगाए कि एक दफा तो जज साहब की बस हो गई। जज साहब ने ऐसे सर पकड़ अपना पीट लिया और जज साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि कुछ खुदा का खौफ कर लें। अगर आपने इस बारे में बात की, अगर आपने आर्मी चीफ का नाम लिया और अगर ये आर्मी चीफ का नाम आगे रिपोर्ट भी हुआ, तो भाई ये मैं बात कराना भी बंद कर दूंगा और मैं उसी टाइम के ऊपर कंटेम्प्ट लगा दूंगा। ये गलत होगा भाई, सीधी सी बात है, गलत होगा। कोर्ट अनकोर्ट ये अदालत उनको कन्वे कर दिया था। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा कुछ घंटों का, कुछ दिनों का आप कह लो, हियरिंग्स का बेसिकली एक स्टेबिलिटी आई कि इमरान खान साहब कुछ जरा बंदे के पुत्र बने। फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो गए कि ये बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है? फर्दे वाहिद। यहां तक के 1971 की जो बात है वो उन्होंने जोड़ दी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। क्यों? क्योंकि उनको मौजूदा आर्मी चीफ से प्रॉब्लम है। अब उनसे माफिया मांग रहे। दूसरी चीज आ जाए
मैंने आपको इल्ज़ाम और तनकीद की तो असलियत बता दी ना, कि इल्ज़ाम नहीं थे, कि वो तनकीद नहीं थी, सॉरी इल्ज़ाम थे। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ तनकीद की है, ये तनकीद नहीं थी, ये इल्ज़ाम थे, बल्कि इल्ज़ाम से भी कहीं ज़्यादा ये झूठा प्रोपेगेंडा था। ये इमरान खान साहब अपनी खुन्नस, अपनी नफरत निकाल रहे थे। ये सच्चाई है और ये कौमी यूथ को सबसे पहले पता होनी चाहिए कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहे। दूसरी चीज, तनकीद, आईने पाकिस्तान उठा करके देखें। मैं नहीं जानती इमरान खान, और मैं नहीं जानती पीपल्स पार्टी, और मैं नहीं जानती नून लीग, और मैं नहीं जानती जुडिशरी, और मैं नहीं जानती पाकिस्तान के इदारे, मैं नहीं जानती पाकिस्तान की फौज। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूं, वो है आईने पाकिस्तान। और आईने पाकिस्तान में फौज पर तनकीद, एक मिनट के लिए अगर मान लें कि इमरान खान इल्जाम नहीं लगा रहे थे, अव्वल तो ये झूठ है सारा, बार बार आज भी झूठ है, मैं 100 दफा बोलूंगी ये झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा इमरान खान ने किया, झूठा। और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली, जो कि सरासर गलत है। इनको कोई माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत होशो हवास में मैनिपुलेशन की उसकी। लेकिन एक सेकंड के लिए सिर्फ यूथियास को समझाने के लिए कि हाँ, अगर इमरान खान साहब इस सब बकवासियात को, मुगल्लजात को अगर तनकीद कहते हैं और इल्जाम नहीं कहते, तो आईने पाकिस्तान में लिखा है कि आप फौज के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। किस आइन में लिखा है बताएं मुझे? ये तो कोई नया आइन ले आएंगे भाई। फौज पर तनकीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और अगर आप करना चाहते तो जाए पार्लियामान में, जाए पहले आइन को तब्दील करें, और वो आइन मेरे सामने लेकर रख के आए, और फिर बीनर सलीम आपकी ये जो तनकीद है, सो कॉल्ड तनकीद, कि जी मैंने फौज पे तनकीद करनी है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी जब आप आईने पाकिस्तान के अंदर इसकी तब्दीली करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं, इट डजंट अलाउ। उससे भी बुरी बात ये, उससे भी गैर आईनी बात ये कि ये मौसूफ जिनका नाम इमरान खान नियाजी है, ये मुल्क के पौने चार साल वजीर आजम रहे, और इनको यही नहीं पता कि फौज को क्या करना है और कितना करना और क्या करना आईनी होगा, और कितना करना कितना ना करना गैर आईनी होगा। यानी जो फौज आईनी काम कर रही है, जनरल बाजवा जाते जाते फौज की पॉलिसी बता गए थे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे। आया अच्छा, हा, न्यूट्रल से भी याद आया, तब तो इमरान खान साहब ने कहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल जानवर नहीं होता, न्यूट्रल जो है वो जानवर नहीं होता, जानवर तो जानवर होता है। अब जी भाई जी, वो तो न्यूट्रल की भी एक आपको नई डेफिनेशन दे रहे हैं। वो सीधी सी बात ये है, आलम उनका ये है, इमरान खान साहब का पता नहीं कोई डोज की कमी हो गई है या क्या हो गई है। वो ये कहते हैं कि एनीवेज, अब मैं क्या बोलूं कि वो क्या कहते हैं, अजीबो गरीब सी का मौक़िफ़ जो है वो उनका सामने आया। वो कहते हैं कि जी जो न्यूट्रल है ना, वो उसका मतलब होता है गैर सियासी। यानी साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता टॉमी। इमरान खान जो भी बोले वो ठीक है। क्यों भाई? कौन है इमरान खान? ऊपर से दिमागी तौर पर एक अनस्टेबल आदमी, हिले हुए आदमी, जिनकी जरा सी दवाइयों की डोज कम हो जाए तो उनकी चीजें जो हैं वो उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। बताएं मुझे, मतलब ये अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। और इससे भी ज्यादा अजीबो गरीब किस्म की बात यह है कि इनके नुमाइंदे हमारे टेलीविजन शोज पर आते हैं और इमरान खान साहब की इन मुगल्लजात को, इन हवा में की हुई बातें को, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, जो कि सरासर गैर आईनी है, गैर जमहूरी हैं, उनको आके डिफेंड करते हैं और फ्रंट फुट पे आके डिफेंड करते हैं। मेरी तो समझ से ये बात बाहर है। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।